Hello everyone, in this video we'll discuss 100 questions on William Shakespeare asked in different competitive examinations. We have already done 300 questions on William Shakespeare that are available in videos on the channel. Today we start with question number 301. So let's start. Question number 301 is identify Falstaff's word in Henry IV part 1. So here our option now Harry, now hell, now Harry, now hell. What time of day it is, what time of day it is, what time of night it is, what type of night it is led. So Falstaff do not ask about night. So these two options gone. He used to call Henry hell. So the option is this. Now hell, what time of day it is lad. Next question is which of the following correctly describes the meaning of Macbeth's words, life is but a walking shadow. Life जो है एक walking shadow है. This is also question asked in net examination. So it means लाइफ इज डिवॉइड ऑफ सब्सटेंस. लाइफ में कोई सब्सटेंस नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच प्ले अदर देन जूलियस सीजर हैज शेक्सपियर डिपिक्टेड द रोमन्स बेटर देन द रोमन्स राइटर देमसेल्व्स हैव डन. किस प्ले में जूलियस सीजर ने रोम को रोमन राइटर से ज़्यादा अच्छा डिपिक्ट किया है? तो ये है कॉरियोलेनस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो. दिस इज अ soliloquy given by Macbeth when he hears the death of his wife. और इसके आगे की लाइन भी बहुत फेमस है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, जिसका एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया. इट मीन्स इट इज़ विदाउट सब्सटेंस. दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन आस्क्ड इन नेट और इसमें फिल अप द ब्लैंक्स था. तो टुमारो 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 डैश इन द प्रिटी पेस फ्रॉम डे टू डे. तो टुमारो टुमारो हर दिन क्या करता है? क्रीप करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है. इन द पिटी पेस फ्रॉम डे टू टू द लास्ट डैश ऑफ रिकॉर्डेड टाइम. सो इट इज लास्ट syllable of to the last syllable of recorded time. And all our yesterday have lighted fools the way to dusty death. Out brief candle. Life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. So answer is the fourth one. Next is which of the following character in Shakespeare's Love's Labour Lost uses former Latinate diction. Latinate words कौन use करते हैं? तो ये है Holofernes. Next question is which of the following oppositions are best evoked by Hamlet's utterance. जब Hamlet बोलते हैं to be or not to be, तो इसका मतलब क्या है? Between life and death, between action and emotion, between affirmation and confirmation, between doing and abstaining from doing. So it is to be or not to be. It means to exist or do not exist. It's not about action and emotion. It's not about affirmation and confirmation. It's about doing and abstaining from doing. So answer is 1 and 4. Is 1 and 4. Next question is 307. What kind of character generally sing इन शेक्सपियर्स प्ले? शेक्सपियर के प्ले में ज़्यादातर किस तरीके के लोग गाना गाते हैं? तो ये है सर्वेंट्स, क्लाउन्स, फूल्स एंड अदर माइनर कैरेक्टर्स ऑफ लो स्टेटस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस, ये 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है. एक्सपेंसिवली माइथोलॉजिकल पोएम है. इस पोएम से शेक्सपियर का सक्सेस शुरू होता है. तो ये पोएम किसकी स्टोरी से ली गई है? तो ये पोएम जो है ओविड की स्टोरी से ली गई है. Next question is identify the poem Shakespeare wrote based on the story of Ovid's Tells's Metamorphosis. It's just the last question. अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया अलग अलग तरीके से. तो ओविड के मेटामॉर्फोसिस के ऊपर कौन है वर्क? विनस एंड एडोनिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग विमेन कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स वर्क? फर्स्ट इज जूलिया कैरेक्टर है द 2 जेंटलमैन इन वरोना.
रोजलिंड एज यू लाइक इट में, वॉयला ट्वेल्थ नाइट में, इमोगन सिम्बलिन में. तो ये चारों ही एज यू लाइक इट में यू मस्ट हैव रेड रोजलिंड डिस्गाइजेज हर सेल्फ एज गायनेमीड. तो यहाँ पे ये चारों ही जो कैरेक्टर है ये डिस्गाइज करते हैं देमसेल्व्स एज अ बॉय इन द परस्यूट ऑफ देयर लवर्स. तो ये कॉमन है. नाउ यू शुड ऑल्सो रिमेंबर द नेम ऑफ द हीरोइन ऑफ दीज 4 वर्क्स. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स remark the beginning of Shakespeare's success? Shakespeare's success start with Venus and Adonis. Name the theatre in which Shakespeare had shares. उस थिएटर का नाम बताइए जिसमें शेक्सपियर का शेयर था. तो इट वॉज द ब्लैक फ्रायर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच शेक्सपियर्स प्ले द फॉलोइंग लाइन अपियर. ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड दाउ आर नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इनग्रेटिट्यूड. दिस लाइन्स हैज बाय सिंग बाय एमिन्स AMINES एमिन्स इन as you like it. Next question is who is the daughter of Shylock in Merchant of Venice? Her name is Jessica. Voila is shipwrecked. Voila जो है shipwreck में coast of Elyra में पहुंच जाती है and she comes ashore with the help of the captain. ये opening scene है किस ड्रामा का? 12 Night का. Next question is who is called the Bard of Avon? Shakespeare is called the Bard of Avon by Ben Jonson. Next question is neither a borrower nor a lender be. ना पैसे उधार लो ना उधार दो. For loan क्योंकि लोन जो है often loses itself and friend. लोन भी वापस नहीं मिलता और दोस्त भी चला जाता है. तो ये लाइन कौन बोलते हैं? पोलोनियस बोलते हैं. किसको बोलते हैं? अपने सन लेटर्स को बोलते हैं. Next question is who is the King Lear's daughter's husband? Second daughter's husband. King Lear's second daughter's husband is Duke of Cornwall. Duke of Cornwall. King Lear's second daughter is Regan. Next question is which of the following is a pastoral comedy by William Shakespeare? Pastoral comedy is a comedy in which the background is pastoral or rural. So it is as you like it. And what is this? The pastoral? Forest of Arden. Let's come to next question. Question number 320. In Shakespeare's Tempest, who is Sebastian brother? Sebastian brother is Alonso. Next question is for what is the phrase the mousetrap used by Shakespeare? It is a play within a play in Hamlet. Next question is 322. Who is sick of self-love in Twelfth Night? So it is Steward Malvolio. The sleepwalking scene occurs in Macbeth. Next question is in the Tempest, I will break my staff, magic wand, bury it certain fathoms in the earth. और मैं इसको कुछ fathom, 1 fathom is 6 feet, उसको अर्थ में बरी कर दूंगा, दफना दूंगा. डीपर देन एवर डिड माई प्लमेट साउंड, आई विल ड्राउन माई बुक, मैं अपनी बुक्स भी ड्राउन कर दूंगा. तो ये टेम्पेस्ट में किसने बोला है? ये बोला है प्रॉस्पेरो ने, बिकॉज ही अस्योर द वर्ल्ड कि अब उसका मैजिक के साथ कोई भी लेना देना नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 325. द कैरेक्टर ऑफ जैक्स इन एज यू लाइक कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज melancholic Jack. Next is he was not of an age but of all ages. This is a statement by Dr. Johnson for Shakespeare. What are the names of 4 bodies left on the stage? लास्ट में हेमलेट में जो लास्ट बॉडीज बचती है कौन कौन मर जाते हैं? तो हेमलेट की मदर मर जाती है सबसे पहले, उसके बाद लेटर्स मर जाते हैं, उसके बाद क्लाउडियस मर जाते हैं और लास्ट में हेमलेट भी मर जाते हैं. तो दीज 4 आर देयर, किंग क्लाउडियस एंड हेमलेट. नेक्स्ट इज 328. कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स अटर्ड बाय हेमलेट.
ओ व्हाट अ रॉग एंड प्लेजेंट स्लेव आई एम आई। ये इसका आगे ये प्ले हैमलेट जो है प्लेयर्स को देख करके, जो ड्रामेटिस्ट आते हैं माउस ट्रैप एक्ट करने के लिए, उसको देख करके बोलते हैं। और यहाँ पर आगे की लाइन है मॉन्स्ट्रस दैट दिस प्लेयर। इन द टेम्पेस्ट मिरांडा, कालिबान एंड प्रॉस्पेरो स्टे इन द आइलैंड फॉर 12 years. Who is Laertes in the play Hamlet? He is a brother to Ophelia, Ophelia is Hamlet's lover, and son to Polonius. Who are the spirit in the play Tempest? तो टेम्पेस्ट में एक तो एरियल इज अ स्पिरिट और दूसरा 3 स्पिरिट का एक शो दिखाते हैं प्रॉस्पेरो. इट इज एरिस, सिरिस एंड जूनो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर ऑब्जर्व 3 यूनिटी इन द टेम्पेस्ट. तीनों यूनिटी को टेम्पेस्ट में इन्होंने मेंटेन किया है. शेक्सपियर के बाकी ड्रामा में देर इज ओनली यूनिटी ऑफ एक्शन, नॉट द यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस. सो दीज 3 यूनिटीज आर टाइम, एक्शन एंड प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्स एरियल. एरियल को कौन बोलता है? दाउ विच आर बट एयर, तुम बस एयर हो. तो ये बोलते हैं प्रॉस्पेरो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पर्पस इज रिजॉल्व इन द सीन बिटवीन द 2 ग्रेव डिगर्स इन हैमलेट. हैमलेट में जो ग्रेव डिगर है वो सीन क्या दिखाता है? इट प्रोवाइड्स अ कॉमिक रिलीफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू वॉर्सेस्टर एंड वर्नन. वॉर्सेस्टर और वर्नन का जो है हेनरी 4 पार्ट 1 के लास्ट में क्या होता है? तो दे आर सेंटेंस टू डेथ बाय किंग हेनरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ हैमलेट इज ट्रू. लेटर्स कन्फेस करते हैं हैमलेट को उसके पार्ट प्लॉट में और एक्सप्लेन करते हैं कि क्लाउडियो किल्ड ऑफिलिया. लेटर्स कन्फेस करते हैं क्लाउडियस का प्लॉट टू किल हैमलेट. लेटर्स कन्फेस करते हैं गर्ट्रूड प्लॉटेड द होल कॉन्स्पिरेसी. और नेक्स्ट इज इट वाज एक्सप्लेन्स दैट इट वाज गर्ट्रूड हु पॉइजन्ड. तो इसका एक्चुअल आंसर है एक्सप्लेन करते हैं हिज रोल टू किल हैमलेट. Claudius plots to kill Hamlet. Next question is who wrote the essay on the knocking on the gate of Macbeth? It was written by Thomas De Quincey. Shakespeare's measure is a dark comedy. It's not a pure comedy, tragicomedy, romantic comedy. It is a dark comedy. Which Shakespeare play has a mosque in it? Tempest. Gives a reference to mosque. In Shakespeare's Macbeth, who was untimely ripped, मतलब सिजेरियन सेक्शन से कौन पैदा हुए थे? तो it was Macduff, and this is why he was able to kill Macbeth. Which of the following lines by Shakespeare is repeated several times? वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल है मिसेस डैलोवे, उसमें बहुत बार कौन सी लाइन रिपीट की है? इफ़ म्यूजिक बी द फ्लड ऑफ लव प्ले ऑन. और ये लाइन आती है 12th नाइट से. Which of the following is not authored by William Shakespeare? डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड ये रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन का वर्क है. रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन. Rest these 3 are the drama by Shakespeare. Next question is which play of Shakespeare open with the line where shall we 3 meet again? हम लोग तीनों वापस कब मिलेंगे? In thunder, lightning or the rain. So this is the opening scene of Macbeth, and these lines are spoken by the witches. Those are on Heath. Next question is Sir Toby Belch is character in Shakespeare's which play? He is character in 12th Night. Cowards die many time. डरपोक बहुत बार मरते हैं before their death. Valiant जो है taste the death but once. ये जूलियस सीजर का स्टेटमेंट है जूलियस सीजर में. शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 1564. द फॉल्ट डियर ब्रूटस. ब्रूटस फॉल्ट जो है हमारे स्टार्स में है, हमारे स्टार्स में नहीं है, बट इस बात पे है कि हम अंडरलिंग्स हैं, मतलब हम लो रैंक के लोग हैं. कैशियस ये स्टेटमेंट बोलते हैं दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज वो जेलस थे किसके? ग्रोविंग पावर से, सीजर के ग्रोविंग पावर से, और वो इंसाइट करना चाहते थे, भड़काना चाहते थे
ब्रूटस को इसके अगेंस्ट। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला है? कैशियस ने। किसको? ब्रूटस को। क्यों? क्योंकि ही वॉज जेलस ऑफ द ग्रोविंग पावर ऑफ सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट। रोमियो और जूलियट के रेफरेंस में ये लाइन किसने बोली? माई लाइफ इज माई फोर्स डेप्ट। मेरा जीवन जो है मेरे दुश्मन का डेप्ट है। बिकॉज ही लव जूलियट, जो कि उसके एनिमी की फैमिली से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन ऑफ द बेस्ट प्लेज द टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। ही इज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाय विच इंसिडेंट? एक सिप रिटर्न हुआ था जो कि गायब हो गया था, उससे। रिटर्न ऑफ द सेलर ऑफ द सिप दैट हैड डिसअपियर्ड। विच इज द ईयर ऑफ द डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर? इट्स 1611। Shakespeare's Merchant of Venice was produced in 1599. The writer of Coriolanus is William Shakespeare. Who among the following was born first of all? इसमें से पहले कौन born हुए थे? So it was William Shakespeare. William Shakespeare was born 1564. ये एलिजाबेथन एज के राइटर हैं। मिल्टन जो है वो प्योरिटन एज के राइटर है, 1608। गैल्सवर्दी जो है, जॉन गैल्सवर्दी, ये विक्टोरियन एज के राइटर है, 1867। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ जो है रोमांटिक एज के राइटर है, 1770। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज यूज बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामा इज फॉर द मोस्ट पार्ट इज। जो इन्होंने अपने ड्रामा के लिए यूज़ किया है वो है ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर सोनेट 100 to 126 इज जनरली डेडिकेटेड टू। shows a reaction of personal relationship with a youth and rich person who is referred to as WH. नेक्स्ट कॉमेडी ऑफ एरर इज एन एडेप्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमेडी ऑफ एरर जो है किस वर्क का एडेप्शन है? लैटिन वर्क का। तो ये है प्लाउटस के मेनोकमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर्स डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम वेनस एंड एडोनिस, जिनसे उसका सक्सेस शुरू होता है, टू अर्ल एंड ऑफ साउथहम्पटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। जूलियस सीजर जो है वो किसके किसके बीच में है? वो हिस्ट्री और ट्रेजेडी के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ हु? जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। स्टार्टफोर्ड ऑन एवन इज अ प्लेस जहाँ पे शेक्सपियर वॉज बॉर्न। वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन वॉरविकशायर। शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स। इंडेप्टेड है फॉलोइंग सोर्स के लिए, सब्जेक्ट मैटर के लिए। ये है हॉलिंसेड क्रॉनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडी। तो 4 ग्रेट ट्रेजेडी में क्या क्या आता है? किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो एंड मैकबेथ। और इसको याद रखने के लिए याद रखेगा सबसे पहले हैमलेट, देन ओथेलो, देन किंग लियर, देन मैकबेथ। तो ये 12th नाइट नहीं आता क्योंकि 12th नाइट जो है इनकी कॉमेडी है। नेक्स्ट इज शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो शेक्सपियर का प्ले जो हैमलेट है वो थॉमस किड का वर्क था और हैमलेट उससे इंस्पायर था। इट वॉज इनेक्टेड इन 1594 बाय लॉर्ड एडमायरल्समैन एंड लॉर्ड चैम्बरलैंसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ प्रॉस्पेरोस डॉटर इन टेम्पेस्ट इज मिरांडा एंड मिरांडा फॉल्स इन लव विथ फर्डिनेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज ambition. It's over ambition. It's a tragic flaw. Next 366 number question is in 12th night Olivia is head over head and ears in love with, she is in love with Voila, जो सैसरो के, वॉइला जो है उसका ट्विन ब्रदर है सिसैरियो, उसके फॉर्म में है वो। तो ओलिविया फॉल इन लव विथ वॉइला जो कि एक्चुअल में है सिसैरियो, जो कि एक्चुअल में है वॉइला। तो वॉइला जो है इसका एक ट्विन ब्रदर है जिसका नाम है सिसैरियो, और वॉइला जो है
ओलिविया जो है वॉइला को सिसेरियो समझती है और उससे प्यार उसको हो जाता है, बाद में उसकी शादी जो है सिसेरियो से होती है. साइलोक इज कैरेक्टर इन मर्चेंट ऑफ वेनिस. ही इज अ ज्यू एंड मनी लैंडर एंड फादर ऑफ जेसिका. हु सेड इट, किसने बोला? हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस. कितने पुअर लोग होते हैं जिसके पास पेशेंस, धैर्य नहीं होता है. वॉट वॉन्ट्स वुंड्स, क्या घाव जो है डिड एवर हेल्प बाय द डिग्री. धीरे धीरे करके ही कोई घाव भरता है. तो ये बात जो है इयागो बोलते हैं. इयागो जो है इज अ विलन इन ओथेलो. एक्चुअली ही सेज इट टू इंटाइस, फर्दर इंटाइस ओथेलो. और इयागो के लिए एक टर्म यूज किया है मैलिग्नेट, मीनिंगलेस मैलिग्निटी. ये एस टी कॉलरिज ने यूज की है. शेक्सपियर ने ऑल टुगेदर 154 सॉनेट्स लिखे हैं. 370 नंबर क्वेश्चन इज कॉर्डेलिया कम टू हेल्प हर फादर. ठीक है, कॉर्डेलिया अपने पापा को हेल्प करने आती है क्योंकि उन्होंने अपने किंगडम का लायन शेयर उसको दिया है, अपने किंगडम का शेयर उसको नहीं दिया है, और वो अपनी एल्डर सिस्टर से हेट करती है. द राइट आंसर इज आउट ऑफ द जेन्युइन लव फॉर किंग लियर, हर फादर. हु हैज बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी. Iago has been termed as motiveless malignity by Coleridge. By Coleridge. Next question is choose the one that does not match. Touchstone as you like it में है. Gondriel King Lear की बड़ी डॉटर है. Cinna is a courtier in Julius Caesar. Gobbo is not in Twelfth Night. Gobbo is a character in The Merchant of Venice. Next is what is the key sonnet Shakespeare unlocked with this key Shakespeare unlocked his heart. तो ये बात जो है वर्ड्सवर्थ ने बोली है और ये की क्या है? सोनेट है, कि सोनेट के थ्रू जो है शेक्सपियर ने अपने हार्ट को अनलॉक किया. किसने बोला है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने. Next question is who wrote the celebrated Shakespearean tragedy? It was written by A.C. Bradley. It contains of 10 lectures. The line age cannot wither her. एज उसको विदर नहीं कर सकती है, नॉर कस्टम स्टिल हर इन्फिनिट वेराइटी. ये ऑकर्स इन एंटनी एंड क्लियोपैट्रा. पोर्सिया जो है वो हीरोइन है मर्चेंट ऑफ वेनिस की. आवर बॉडीज आर आवर गार्डन टू विच आवर विल्स आर आवर गार्डनर. हमारा बॉडी हमारा गार्डन है, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारी जो विल है, इच्छा शक्ति जो है वो गार्डनर है. ये इयागो बोलते हैं. शेक्सपियर ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर नहीं लिखा है, कॉमेडी ऑफ मैनर नहीं लिखा है, सेंटिमेंटल कॉमेडी नहीं लिखी है. ही हैज रिटन रोमांटिक कॉमेडीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज was owned by William Shakespeare. So William owned by Shakespeare where his masterpieces were performed. So it was Globe Theatre. Next question is oh God, how weary, stale, unprofitable seems to me all the uses of world. ये जो uses of world है वो मुझे कितने weary, stale और unprofitable लग रहा है. It is told by Hamlet. Next question is the rest is silence. Dash are the last word of Hamlet in the drama Hamlet. ये याद रखिएगा. The rest is silence. In which play of Shakespeare do we have the character of Voltimand and Cornelius? It is in Hamlet. Next question is which of Shakespeare's tragedy is called tragedy of reflection? It is Hamlet. Hamlet was written by Shakespeare. The Hamlet किसने लिखा है? विलियम फॉकनर ने. Which is not Shakespeare's drama? Titus Andronicus is Shakespeare's drama. Hamlet is his drama. Richard III is Shakespeare's drama. Edward II is not his work. Edward II is the work of Christopher Marlowe. Next question is who has spoken the following words in Shakespeare's Macbeth? The sleeping and dead are but pictures. सोए हुए लोग और डेड सिर्फ पिक्चर की तरह होते हैं. दिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल. ये आपकी बचपन की आंखें, आपका इनोसेंस है जो डेविल को पेंट करता है आपके दिमाग में. तो ये लेडी मैकबेथ कहती है. लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच भी बोला जाता है. व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट? द सबटाइटल इज व्हाट यू विल. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग? टेम्पेस्ट हैज एन एपिलॉग. What is epilogue?
अगर किसी ड्रामा का इंट्रोडक्शन होता है तो हम इसको कहते हैं प्रोलॉग, जो पहले आ गया, और जो ड्रामा के लास्ट में एक स्पीच होती है हम इसको कहते हैं इपीलॉग। तो टेम्पेस्ट का इपीलॉग किसने बोला है? प्रॉस्पेरो ने। नेक्स्ट इज हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडी हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। शेक्सपियर की कॉमेडीज में सिर्फ हीरोइन है और हीरो नहीं है, तो ये बात जॉन रस्किन ने बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो ऑकर्स इन हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजियंस। रेयर एक्शन जो है वो वर्च्यू में है, वेंजियंस में नहीं है। ये टेम्पेस्ट में बात आती है, स्टेटमेंट आता है। द पॉटर सीन प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ। पॉटर सीन किस में है? मैकबेथ में है, ये कॉमिक रिलीफ देता है। हु इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट कैन सक मेलनकॉली आउट ऑफ सॉन्ग? ही इज जैक्स हु कैन सक द मेलनकॉली आउट ऑफ सॉन्ग। हाउ डज रोजलिंड रिस्पॉन्ड टू ऑर्लैंडो? रोजलिंड जो है रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं ऑर्लैंडो को? व्हेन ही कॉन्टेंट्स कि वो मर जाएगा इफ शी डज नॉट रिटर्न हिज लव इन एज यू लाइक इट, सो सी एश्योर्स हिम दैट नो मैन हैज एवर डाइड ऑफ लव। कोई भी इंसान प्यार के कारण आज तक मरा नहीं है। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स। ब्रूटस हमारा जो फॉल्ट है स्टार हमारे स्टार्स में नहीं है, पर इस बात में है कि हम अंडरलिंग्स है, लो रैंक के लोग हैं। ये कैशियस बोलते हैं जूलियस सीजर में। Which of the following books marks the beginning of Shakespeare's success? It is Venus and Adonis. In which play Shakespeare introduced us to the world of fairies and roguish imp called Puck, जिसका नाम है Robin Goodfellow? तो it is in Merchant of A Midsummer Night's Dream. Next, out brief candle. ये लाइन जो है इसके आगे की लाइन होती है Life is but a walking shadow, poor player. ये लाइन आती है मैकबेथ में। Makbul is a movie, it is based on Macbeth. Macbeth is a play by William Shakespeare. It is about regicide, the killing of the king. Thank you. Keep reading.